Hello, students. Welcome back to the lecture 3 of the CLAT 2026 preparation series. So, with this lecture, we are going to hit the bull. We are starting with the reading comprehension. So, this is decoding reading comprehension. Now, what does the word decoding means? So, when you make a message, when you create a message, you code a message. Suppose you and your friends, you even in the classrooms, you have some sort of secret language. So, you create some code for it. So decoding means you are opening that secret. So we will try to decode various aspects of reading comprehension. Okay. Now, like I had told in the previous strategy videos that we are going to start with some sort of complicated uh, sentence that we are trying to break. So when you come across some sort of heavy, complicated statement in your exam, you do not feel scared of it. So at the outset, if you feel that this, what is this? Like पहली slide पे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा. Just don't be afraid. शुरुआत में आपको ये डराने के लिए है ताकि 3 4 5 बार इसको देख लो and you get so used to it that every time you come across a heavy complicated statement you are used to it and your mind is able to work. Like I told you, रिप्टेलियन माइंड से फियर का इंस्टिंक्ट हटाना है और ताकि उसके बाद वो काम कर सके. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट that says the judiciary as the guardian of constitutional principles must exercise its discretion judiciously to ensure that legal interpretations align with the broader tenets of justice and equity, thereby upholding the rule of law. Now I have created a list of all the difficult statements that were used here, and I'll pause for 5 seconds and just try to reread it and see what you can, like, can you break the statement? Okay, I'll pause for 5 seconds. Now let's see what this statement is saying. The judiciary, as the guardian of constitutional principles, must exercise its discretion. Guardian matlab a protector or a defender, like you have guardians and like parents and guardians. उस तरीके से guardian. So judiciary guardian है constitutional principles के. ठीक है? So it must exercise its discretion. Discretion का क्या मतलब होता है? Discretion का मतलब होता है कि डिसीजंस अपने जजमेंट के बेसिस जो उनको डिसीजंस लेने होते हैं उसमें जजमेंट केयरफुली यूज करें. डिस्क्रिशन जुडिशियली एक्सरसाइज करना मतलब अपने डिसीजंस को बहुत केयरफुली लेना टू इंश्योर दैट लीगल इंटरप्रिटेशंस अलाइन विद ब्रॉडर टेनेट्स. यानी लीगल इंटरप्रिटेशन कोर्ट का क्या काम है? जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो जो लीगल क्लॉज है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करना है, उसको बोलते हैं लॉ को इंटरप्रेट करना. अलाइंस विद द ब्रॉडर टेनेट. टेनेट मतलब प्रिंसिपल. ठीक है, किसी चीज का सिद्धांत. tenet of justice and equity, thereby upholding the rule of law. So basically, statement is saying that courts must make fair decisions to protect justice and follow the law. सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर फेयर डिसीजन लेना है, जिसको बोला है एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन जुडिशियसली टू इंश्योर लीगल इंटरप्रिटेशंस. बेसिकली केयरफुली सोच के एक फेयर अंडरस्टैंडिंग या एक फेयर जजमेंट देना. सो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, सो इट्स जस्ट दिस बेसिकली ट्राइंग टू से courts must make fair decisions to protect justice and follow the law. ठीक? So these are the terms. If you find any problems in that, you can look at them. Okay. Now let's get to the topic of the day. Why do CLAD passages seem so difficult? The CLAD passages are designed to appear complex, but they follow a pattern. ठीक है? It like उनका पर्पस ही ऐसा है कि आपको डराना कि भाई वो ऊपर से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, बट एक्चुअली इफ यू find the pattern in them, which we will eventually by the end of this series of reading comprehension, हम वो pattern पकड़ना सीखेंगे. We'll try to find the pattern and then we will be able to break it. It's like a fort. If you find just the right door, you will be able to enter. The challenge isn't the content, it's the writing style. Like we saw in the previous example कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है, बहुत ही सिंपल सी बात कही जा रही है, but the writing style is such that it feels like कि कुछ तो बहुत बहुत ही बड़ी बात कह दी है, कुछ तो बहुत कमाल हो रहा है यहाँ पे. It's just very simple thing. So we just have to understand the writing style कि कैसे कैसे इसको घुमा के what exactly are they doing, what tricks and things
are they doing that is creating the challenge. So it's not the content, but just the writing style. Okay. So today we'll break down how CLAD test makers create this complexity. So हम एक बार समझ में आ गया कि complexity create कैसे कर रहे हैं, तो फिर हम उस complexity के साथ deal भी कर लेंगे. Alright? Now, before we get into it, you all remember that Three Idiots wala super popular scene when the professor asks, "What is a machine?" How does Chatur reply? Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw and its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. अभी चतुर का ये response था. What was Rancho's response to the same question? A machine is anything that reduces human effort. फिर the point is कि वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अंदर मैसेज क्या छुपा है. हमें उससे मतलब है. खाली एक मशीन की चतुर डेफिनेशन से हमें परेशान नहीं होना है. हम बस मशीन को समझ लेंगे तो वी विल बी एबल टू रीच द रैंचो डेफिनेशन. सो एवरी टाइम नाउ यू कम अक्रॉस सम डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, उस या फिर डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड पैसेज, वहां पे सीधे चतुर की इमेज लाओ अपने दिमाग में कि ये चतुर है. ठीक है, तुम रैंचो. तुम्हें एक सिंपल मैसेज उसमें से ढूंढना है. एंड वंस यू आर थ्रू विद ऑल द टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, डरना नहीं है. प्यार के वो तीन शब्द, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो मेंटेन करना है. एंड देन वी विल बी एबल टू डील विद वट एवर कॉम्प्लेक्सिटी दैट द एग्जामिनर थ्रोज एट यू. ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर आर, we have to understand how CLAD test makers create complexity in the passages. समझेंगे तभी डील कर पाएंगे. Then we have to identify difficult writing styles and structures. वो क्या writing styles और structures हैं जिनको use करके ये difficult बना रहे हैं passages. अब हम उनको identify कर लेंगे तो फिर वो हमें difficult ही नहीं लगेंगे. ठीक है? Then we have to learn to simplify complex language in the passages. तो वो complex languages को जब हम identify करेंगे तो उन्हें simplify कैसे करना है, so that we are able to understand it and hence solve the question. And fourth, recognize the common traps in the comprehension questions. Okay, तो क्या common traps हैं, जब हमें पता चल जाएंगे ये इनका trap है तो हम उसमें फंसेंगे नहीं. So these are the objectives of today's lecture. Okay, now the first, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि वो पूरा सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टैक्टिक्स इज यूजिंग लॉन्ग मल्टी क्लॉज स्टेटमेंट्स. ओके, तो एक स्टेटमेंट, एक क्लॉज, कॉमा लगाया एक और क्लॉज, कॉमा लगाया एक और क्लॉज, तो वो स्टेटमेंट कहीं खत्म ही नहीं हो रहा कि भाई वही प्रोफेसर वाला कि कहना क्या चाहते हो. तो ये एक कॉम्प्लिकेट करने की टैक्टिक है. ठीक, these sentences often have unnecessary details that make comprehension harder. तो वो ऐसा कुछ जरूरत का डिटेल ऐड नहीं कर रहे. इट्स एन अननेसेसरी डिटेल. वो खाली उसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, वो खाली डराने के लिए उसमें होता नहीं है इफ बट ये वो जोड़ दिया गया है. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स एंड सी कि ये कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड हाउ डू वी ब्रेक देम डाउन. So the example is, despite opposition, the constitutional amendment, which had been widely debated in legal circles, was ultimately passed after much deliberation. अब ये 3 लाइन्स के लगभग में ये स्टेटमेंट आ रहा है और यहाँ पे मतलब इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें यूज करी है जिससे लग रहा है कि लाइक बहुत लंबा कर दिया. बट इफ यू सिंप्लीफाई इट, डिस्पाइट ऑपोजिशन द अमेंडमेंट वाज पास्ड आफ्टर डिबेट. अब हमने ये कैसे सिंप्लीफाई किया? वी हैव दिस स्ट्रेटजी दैट वी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. देखिए अब यहाँ पे आपका ग्रामर का रोल आता है. जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपको चीजों का पता रहेगा, ग्रामेटिकल रूल्स मोटे मोटे भी पता होंगे ना, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग अदर थिंग्स. तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े ग्रामर के रूल्स काम भर के सीखेंगे. अगेन डोंट बी इंटिमिडेटेड, मैं पूरे ग्रामर में आपको कभी नहीं ले जाऊंगी, सिर्फ रिक्वायर्ड. ओके, रिमूव द अननेसेसरी क्लॉजेस एंड फोकस ऑन द कोर आइडियाज ऑफ द सेंटेंस. तो ये 4 चीजों को हम देखते हैं हमने स्टेटमेंट में कैसे अप्लाई करना है.
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर की जो बात की है, क्या होता है सब्जेक्ट? सिंपली तो बोले मुद्दा, कि भाई कहना क्या चाहते हो, मुद्दा क्या है यहाँ पे? तो यहाँ मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की ऑपोजिशन के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बहुत डिबेट विबेट हुआ, पास हो गया। तो मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हुआ क्या उसके साथ? हुआ ये कि वो पास हो गया, वर्ब है, पास हो गया। तो हमने जल्दी से सब्जेक्ट पकड़ लिया, किस चीज के बारे में बात हो रही है, पहले ये तो समझ में आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, उस अमेंडमेंट को जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मुद्दा है, ये सब्जेक्ट है, अब हमें समझना है उस सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, वर्ब क्या है, वो पास हो गया। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई कोई अमेंडमेंट पास हुआ है, और हमें दिख रहा है ऑपोजिशन था, तो भाई ऑपोजिशन था, पर फिर भी अमेंडमेंट पास हो गया। तो ये 3 लाइन का हमें मोटा मोटा मतलब समझ में आ गया। हैड बीन वाइडली डिबेटेड इन लीगल सर्कल्स एंड दिस एंड दैट का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, देयर इज दिस वर्ड यूज्ड, डेलिबरेशन हियर। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? डेलिबरेशन। सो द वर्ड डेलिबरेशन मीन्स डिस्कशन या डिबेट, इस तरीके का, बेसिकली डिस्कशन। कि अब जैसे कोर्ट में बहुत सारे जजेस बैठ के कई बार डेलिबरेट करते हैं ओवर अ लॉट ऑफ लॉज, हाउ टू इंटरप्रेट देम, ठीक है। सो दैट्स योर वर्ड डेलिबरेशन, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं। सो इट स्टार्ट्स बिल्डिंग योर वोकैबुलरी। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। The financial instability that characterized the global markets during the early 21st century, exacerbated by reckless speculation and weak regulatory oversight, led to severe economic downturns. अब इन्होंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स डाल दिए, जैसे कि एग्जैसरबेटेड। एग्जैसरबेट का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ना। रेकलेस स्पेक्यूलेशन, रेकलेस का मतलब ऐसे केयरलेस, जैसे कि कोई भी चीज आपने अगर किसी चीज को लेके बड़ा केयरलेस एटीट्यूड है आपका, तो बोलेंगे रेकलेस एटीट्यूड है। स्पेक्यूलेशन, गेस करना। तो यहाँ पे रेकलेस स्पेक्यूलेशन का मतलब है बहुत ही केयरलेस गेसिंग करना। या और डाउन टर्न का मतलब है किसी चीज में गिरावट होना, फॉल, कम होना, उसका डिक्लाइन होना। तो यहाँ पे ये सिंपली बस एग्जैसरबेटेड को इंक्रीज कर देते, रेकलेस स्पेक्यूलेशन को केयरलेस गेसिंग कर देते, डाउन टर्न को फॉल कर देते, तो काम बड़ा आसान हो जाता। बट अगर काम आसान हो जाता तो फिर क्लैट के एग्जामिनर्स को सैलरी किस बात की मिल रही है? तो इसलिए उन्होंने ये काम किया है। बट देन अगेन वी विल डेवलप आवर वोकैब इनफ एंड वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कॉम्प्लिकेट कहाँ कर रहे हैं, सो दैट वी डोंट फॉल इन द ट्रैप। नाउ अब हम वापस से अपना सेम तरीका लगाते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दैट कैरेक्टराइज द ग्लोबल मार्केट ड्यूरिंग द 21st century, exacerbated by reckless speculation and weak regulatory oversight, led to severe economic downturns. अब मोटा मोटा इतना समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है, कि मुद्दा तो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इसी के साथ कुछ कुछ तो भी हो रहा है। और ये क्या हुआ है कि भाई कुछ तो इसने डाउन टर्न, डाउन मतलब नीचे जा रहा है, टर्न मतलब टर्न लेना। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है, इकोनॉमिक नीचे जा रही है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कॉज एन इकोनॉमिक डिक्लाइन। मोटा मोटा यही मतलब है इस लाइन का। तो अगर आपको इनफैक्ट बीच के वर्ड्स भी नहीं पता है, और बहुत ही आप काम माइंड से इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका आप खाली सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे कि मुद्दा क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है इस स्टेटमेंट का, यू विल बी एबल टू गेट टू द मीनिंग ऑफ इट, कि जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन का कॉज है ये, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो इस तरीके से इफ यू कम अक्रॉस अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट, ट्राई टू फाइंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इनमें सब ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो इन दोनों एग्जांपल्स में सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे भी आपको इस स्टेटमेंट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। So what are the key takeaways from these two examples? That, okay, for this specific example, the extra phrase that is characterized by or the exacerbated by, they are just there to add confusion. अब ये भारी भारी वर्ड देख के एक बार आपका रेप्टेलियन माइंड भागेगा कि यार ये क्या है, तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आता, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाओ, देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। आपको जब पता है कि मुद्दा ढूंढो, जो फैंसी वर्ड है उस पे दिमाग बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। मुद्दा ढूंढो, व्हाट इज द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। सो यू विल बी एबल टू गेन सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। ये प्रैक्टिस कर लोगे, फिर तो कभी कुछ न कहीं नहीं फंसने वाले, ठीक है। तो द मेन आइडिया इज ऑलवेज हिडन विद इन द एक्स्ट्रा वर्ड्स। परेशान नहीं होना है उनसे, बिकॉज वोकैबुलरी तो किसी की भी 100% नहीं है ना। अंग्रेजों को भी पूरी इंग्लिश तो नहीं आती, नॉट एवरी इंग्लिश पर्सन नोज द होल डिक्शनरी। सो डू नॉट बी इंटिमिडेटेड। अब मैंने वर्ड इंटिमिडेटेड का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, यू शुड नो व्हाट इट मीन्स, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट से भी यू शुड बी एबल टू गेस। यू डू नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय फैंसी वर्ड्स। नाउ द सेकेंड टाइप,
making simple ideas sound complex. So the CLAT examiner, they often introduce complex terms to make passage seem more difficult. Now, however, most jargon is unnecessary and can be understood within the context. अब इस कॉन्टेक्स्ट में से द वर्ड जार्गन का मतलब तो मुझे बताओ, क्या हो सकता है जार्गन वर्ड का मतलब? यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, तो just take a like guess. I'll again pause for 5 seconds. तो जार्गन वर्ड का मतलब है कि जब किसी प्रोफेशन में वो उस प्रोफेशन के लोग कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि डायग्नोसिस वर्ड इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ जार्गन, कि वो डॉक्टर्स के प्रोफेशन में डायग्नोसिस होता है, हम जाके पूछते हैं सर हुआ क्या है, तो वो बोलते हैं डायग्नोसिस क्या है। या फिर गेमर्स आई थिंक शॉर्टकट्स यूज करते हैं, जी जी गुड गेम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या प्रोफेशन में जो स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको जार्गन कहते हैं। फॉर समवन लाइक मी जो सोशल मीडिया से उतना इन्वॉल्व नहीं है, मेरे लिए जेन जी की लिंगो भी एक जार्गन होती है। जैसे आई केम अक्रॉस दिस वर्ड कॉल्ड डेलुलू एंड आई वाज लाइक ये क्या है? Like, ये मेरे लिए जेन जी की एक जार्गन है कि इतनी इंग्लिश पढ़ी क्यों है जब मुझे डेल्यूजन वर्ड को डेलुलू ही बोलना है। सो लाइक दिस जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि जार्गन शब्द का क्या मतलब है, कि वो स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड। ओके, ये मैंने बहुत ही लाइट एग्जांपल दिया जस्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि जार्गन क्या होता है। तो अगर आप उसको बहुत ही हल्के में समझना चाहें, जार्गन मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म। तो आपके जो पैसेजेस हैं वो जार्गन से भरे होते हैं। तो कोई ऐसा जार्गन जब आए ना, उससे डरना नहीं है। वो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए वहां पे भेजा गया, वहां पे रखा गया है। उसको नहीं समझ में आता है, पहले तो वी विल प्रिपेयर वोकैबुलरी इनफ कि मैक्सिमम समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो भी वी विल सी कि हम कैसे उसको एक सिंपल आइडिया में ब्रेक कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडिया को। ठीक है, लेट्स सी। सो लाइक आई सेड, हमारी स्ट्रैटेजी होगी टू लुक फॉर कोर मीनिंग। वी हैव टू इग्नोर द अननेसेसरी एकेडमिक वर्ड्स, जैसे कि अभी नीचे वाले स्टेटमेंट में हम देखेंगे। सो द स्टेटमेंट इज anthropogenic influence on climatic patterns necessitates a re-evaluation of policy frameworks aimed at mitigating deleterious environmental effects. अब यहाँ पे जो jargon है वो है anthropogenic, ठीक है, और deleterious। अब anthropogenic is a technical term जिसको हम vocab करेंगे तो root words भी हम इसमें करेंगे। anthro is for थ्रोपो मतलब कि कुछ ह्यूमन के द्वारा किया जाने वाली चीज, मानव जनित जिसको हिंदी में बोलते हैं, या जो ह्यूमंस ने प्रोड्यूस किया, समथिंग दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। सो क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट इज एंथ्रोपोजेनिक बिकॉज हु इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज? Human activities. We have cut down forests. We have created concrete jungles. We have created so many buildings, they are emitting heat. We are causing pollution. So climate change, pollution, all these things are anthropogenic, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई, भगवान ने नहीं किया है, ये ह्यूमंस कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का ये मतलब है। ठीक है, तो anthropogenic influence on climatic pattern necessitates a re-evaluation of policy frameworks aimed at mitigating deleterious environmental effects. तो ये एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट पैटर्न्स नेसेसिटेट्स अ री-इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करना किसी चीज को, समझना, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हम आपके आंसर स्क्रिप्ट्स का इवैल्यूएशन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। उसको री इवैल्यूएट करना, अगर आपको कई बार आपने सुना होगा बोर्ड्स वगैरह में लोग कॉपी रीचेक के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, कुछ तो सही नहीं है, तो रीचेक के लिए भेजा, तो उसको ही बोल देंगे री इवैल्यूएशन के लिए भेजा, सेम बात है। ठीक है, री-इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एम्ड एट मिटिगेटिंग डेलीटरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट। अब मैं मिटिगेटिंग डेलीटरियस एनवायरमेंट इन दोनों टर्म्स का मतलब नहीं बताती हूँ, और उसके बिना हम क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो अब एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक पैटर्न नेसेसिटेट्स अ री-इवैल्यूएशन। अब री-इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क की अगर बात हो रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, तो एंथ्रोपोजेनिक कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्लाइमेटिक पैटर्न पे कुछ तो गड़बड़ सा हो रहा है, एंड एम्ड एट मिटिगेटिंग डिलीटरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कुछ गड़बड़ इफेक्ट हो रहा है और हमें पॉलिसी को रीचेक करना है, यानी कि
उस गड़बड़ इफेक्ट को रीचेक करके ठीक करना है, मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं। बट अगर हमें यही मतलब भी पता हो मिटिगेटिंग और डिलीटरियस का, तो मिटिगेटिंग का मतलब होता है किसी हार्मफुल इफेक्ट को कम करना, और डिलीटरियस का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। तो बेसिकली इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लाइमेटिक पैटर्न्स पर, क्लाइमेटिक पैटर्न्स पे इन्फ्लुएंस मतलब आपने देखा है कि हीट अब और भी ज्यादा, गर्मी और ज्यादा होती है, अब रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं सालों सालों के, ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस बार दिल्ली में उतनी ठंडी नहीं पड़ी, बट एनीवे। तो उसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स के इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं, जैसे कि साइक्लोन्स वगैरह और भी ज्यादा ज्यादा आने लगे हैं, और इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो सब हम ह्यूमंस का किया धरा है। तो एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक पैटर्न, क्लाइमेटिक पैटर्न मतलब ये मौसम के बदलाव, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, सो पॉलिसीज मस्ट बी रिव्यू। बेसिकली सिंपल सी चीज कि भाई इतना ज्यादा जो एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेटिक पैटर्न पे चेंज आया है, इसलिए रीचेक करो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को, ताकि क्या कहते हैं, मतलब बस इतना ही है, आगे नहीं। वील ऑल्सो सी कि जितना बोला जा रहा है उतना ही समझना है, उसके आगे नहीं समझना है, ठीक है। अगेन यस, so another example is the judiciary's proclivity to engage in expansive interpretation of constitutional provisions has been subject of academic discourse. इसमें थोड़ा कोशिश करिए कि अगर मतलब नहीं पता है चीजों को, तो भी क्या आप कुछ इसमें क्या समझ सकते हैं, क्या वो समझ में आता है कि जो मोटे मोटे वर्ड्स है उनको हटा दीजिए। जुडिशरीज समथिंग टू इंगेज इन, एक्सपेंसिव, एक्सपैंड से आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो एक्सपैंड मतलब बढ़ना, बड़ा कुछ इस तरीके का। तो एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन अगर कह रहे हैं तो कुछ बड़ी, ब्रॉड, ब्रॉड है कोई चीज तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो उतनी क्लियर नहीं होगी। यानी कि ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मतलब, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन मतलब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन मतलब कि वो उतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक होगी, नैरो मतलब नैरो भी नहीं, स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन होगी तो क्लैरिटी होगी उसमें। तो जज जुडिशरी की प्रोक्लिविटी, अगर हमको, अभी मैं प्रोक्लिविटी का मतलब नहीं बताऊंगी, तो जुडिशरी की प्रोक्लिविटी टू इंगेज इन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि ब्रॉड या वेग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब आपको लॉयर बनना है तो ये तो पता ही है कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने क्लॉज हैं जो उसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनको इंटरप्रेट करती है। और इतना अगर ब्रॉड इंटरप्रेट करती है तो ये डिबेट का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स का मतलब है कि इस पे बहुत डिबेट हो रही है। एकेडमिक डिस्कोर्स, एकेडमिक मतलब जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, लीगल लीगल एकेडमिशियंस होते हैं, एकेडमिशियंस अक्सर प्रोफेसर्स या पीएचडी स्कॉलर्स को बोला जाता है जो उस चीज पे शोध करते हैं। तो इस तरीके के जो कम्युनिटी होती है ना, एकेडमिक कम्युनिटी बोलते हैं, एकेडमिक लोग ये लोग होते हैं, तो उनका काम ही है डिबेट करना। जिंदगी में कुछ हो जाता है, उनका काम डिबेट करना है। आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। तो वो शोध करते हैं कि भाई वो हर चीज को अनबायस तरीके से देखते हैं, इसलिए वो एक हर एक इम्पोर्टेंट पहलू पे वो डिबेट, वाद विवाद, डिस्कशन करते हैं। तो एकेडमिक डिस्कोर्स का ये मतलब है। अब प्रोक्लिविटी का मतलब है उनकी प्रवृत्ति, उनकी वो आदत। तो जजेस जुडिशरीज प्रोक्लिविटी टू एंगेज इन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स। सिंप्लीफाइड तरीके से, जजेस ऑफन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली विच इज डिबेटेड बाय स्कॉलर्स। तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम ये है कि उससे कई बार केसेस लंबे खिंचते रहते हैं, क्योंकि इतना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है उसमें। सब लॉयर्स तो आपको, आप लोग कुछ दिनों में स्किल सीख ही जाएंगे, बाल के खाल, बाल के खाल, बाल के खाल निकाल के वो केस खींचा करते हैं, एंड इट डजंट हेल्प। तो ये, बट कई बार ऐसा होता है कि इतना नैरो इंटरप्रिटेशन निकालना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीजें वेरी करती हैं। तो एक डिबेट का मुद्दा हो गया। तो इसलिए ये बस इतनी सी बात कह रहा है कि जजेस ऑफन इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन यानी ब्रॉडली, विच इज डिबेटेड बाय स्कॉलर्स, सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब एक ही पैराग्राफ में या एक ही 3 4 5 लेंथ के पैराग्राफ में बहुत सारे व्यू पॉइंट देती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कि ये जो टॉफी है ये अच्छी तो है, पर उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा मीठी है, बट इनको ऐसा लगता है कि इसकी पैकिंग उतनी सुंदर नहीं है। तो आप, मतलब ये तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, बट
ये कंफ्यूज कर सकता है अगर इसमें कुछ फैंसी फैंसी वर्ड्स भी स्प्रिंकल कर दिए जाएं। स्प्रिंकल करना मतलब ऐसे डाल देना, जैसे आप चेरी स्प्रिंकल करते हैं आइसक्रीम पे, वैसे। So let's see an example of this. While some economists argue that government intervention stabilizes market, others believe that free market policies lead to a better long-term growth. A third school of thought suggests a balanced approach. अब इन्होंने यहाँ पे तीन अलग अलग व्यूज हमें प्रेजेंट कर दिए हैं, तो हमको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आगे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कहना क्या चाह रहा है, या फिर व्हाट इज द बैलेंस्ड व्यू, या ऑथर का व्यू को कौन सा स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये हमें देखना होगा, तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कई व्यूज हो रहे हैं, और आगे इवेंचुअली कौन सा स्ट्रेंथन होगा, बट ये सेकंड पार्ट है स्ट्रेंथन एंड ऑल वाला, बट एटलीस्ट ये हमें समझना है कि यहाँ पे कई व्यूज प्रेजेंट हुए हैं एंड हेंस द कॉम्प्लिकेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें समझना है। तो अब इसमें दिखा रहा है तीन व्यूज है। तो पहला व्यू है प्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसे कि वाइल सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टेबलाइजेस मार्केट, यानी स्टेबल कर रहा है मार्केट को। जो मार्केट ऊपर नीचे होना इज नॉट अ गुड थिंग। मार्केट स्टेबल रहती है तो इसका मतलब है कि पैसा इकोनॉमी से इधर उधर बहुत ज्यादा ऊपर आ जा नहीं रहा है, यानी कि इकोनॉमी स्ट्रांग है हमारी। तो स्टेबलाइज करता है अगर गवर्नमेंट उसमें इकोनॉमी में कुछ इंटरवीन करती है। तो ये हो गया पहला व्यू जो कि प्रो गवर्नमेंट है, यानी इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवीन करने से मार्केट स्टेबलाइज हो रही है। अदर्स बिलीव दैट फ्री मार्केट पॉलिसीज लीड टू अ बेटर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो एक व्यू तो हो गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर नहीं हो तो क्या हो, फ्री मार्केट, फ्री छोड़ दो। इंटरवीन करना मतलब उसमें दखल देना। अगर गवर्नमेंट दखल नहीं देगी तो फ्री होगी ना। सेकेंड व्यू ये कह रहा है कि फ्री छोड़ दोगे तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी, भले ही तुरंत शायद ऊपर नीचे मार्केट हो जाए और स्टेबल ना रहे, बट इवेंचुअली मार्केट, प्रो मार्केट पॉलिसी वाले बोलते हैं कि इवेंचुअली मार्केट में अपने आप हो ही जाता है, जिनको जाना है चले जाते हैं, जिनको रहना है वो रुक जाते हैं, और एक पॉइंट पे स्टेबिलिटी आ जाती है और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। तो सेकेंड व्यू है जो कि प्रो मार्केट पॉलिसीज हैं, कि भाई मार्केट प्रो फ्री मार्केट पॉलिसीज हैं, यानी कि फ्री मार्केट माने नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार को कोई दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। A third view है, a third school of thought suggests a balanced approach, basically मिला जुला के, यानी हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड मतलब वही मिला जुला के, इनका भी उनका भी, थोड़ा इनका ले लिया थोड़ा उनका ले लिया, हाइब्रिड अप्रोच। तो यहाँ तीन अप्रोचेस दिए गए हैं। तो अगर ये पूरा लंबा पैराग्राफ होता तो हो सकता है आगे के पैराग्राफ में किसी अप्रोच को क्रिटिसाइज करते या किसी अप्रोच को स्ट्रेंथन करते और उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें अलग अलग अप्रोचेस को। So again, the strategy has to be identify each viewpoint in a passage, and for that you can underline or make notes wherever you a viewpoint starts. So आपको पता चले कि ये तीन viewpoint हैं, ठीक है? Now another possible complexity create करने का तरीका is false complexity. ठीक है? Some passages they use overly wordy or roundabout language to disguise simple idea. और disguise का क्या मतलब होता है? What is the word disguise? Can you try to find it from the context? इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है disguise का क्या मतलब होगा? Again, I pause for 5 seconds. I hope you might have, a lot of you might have been able to guess. Disguise means hide करना, ठीक है? तो some passages use overly wordy or roundabout language. Roundabout मतलब घुमावदार. Round is गोल. So roundabout language to hide simple ideas. ठीक? Now identifying these patterns will save time and improve accuracy. जब आपको ट्रैप्स पता चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रैप है। अब हमको समझ में आ गया ये ट्रैप है, इससे तो भैया किनारे होके निकल जाओ। ठीक? Let's look at some of the examples. It is often the case that individuals, when faced with economic uncertainty, tend to exhibit a preference for financial security over speculative investment strategies. हमने reckless speculation पीछे देखा था, अब speculative investment strategies का मतलब क्या होगा? Speculation, speculative, speculate करना, guess करना, जब आपके पास पूरा डेटा ना हो, तो मतलब गेस तो तभी करेंगे ना अगर सब कुछ ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो गेस कहाँ रह गया। तो स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मतलब कि आपको 10 में से 4 चीजें पता, उसके बेसिस पे आप कुछ स्ट्रैटेजी आपने इन्वेस्टमेंट की बना ली, तो स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज। It is often the case that individuals, when faced with economic uncertainty, tend to exhibit
अ प्रेफरेंस फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओवर गेस करने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो अगर क्या कहते हैं ऊपर नीचे कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रही है, तो यहाँ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और पीपल क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली पीपल प्रेफर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन अनसर्टेन टाइम्स, कि अनसर्टेन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन टाइम होंगे तो लोगों को भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। इतनी बेसिक सी बात कही जा रही है। तो अब इसमें जो फ्रेजेस हैं, इट इज ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है, अरे ये खाली लंबा कर है, इट्स ओनली ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी, एक फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई रियल मीनिंग नहीं ऐड कर रहा है। अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढिए और उसके बाद इसको ब्रेक करना है कि भाई किसकी बात हो रही है, क्या उसके साथ हो रहा है, एंड हेंस यू रीच टू द मैसेज दैट इज बीन कोडेड इन दिस स्टेटमेंट। ओके, now the example, another example. A significant portion of the population engages in the habitual morning consumption of a caffeine infused beverage to enhance cognitive alertness and overall productivity. अब ऐसा तो लग रहा है कुछ बहुत ही कमाल की बात बोल दी है, कॉग्निटिव अलर्टनेस, कैफीन इंड्यूस्ड बेवरेज। क्या है ये? सिंपल बात, मोस्ट पीपल ड्रिंक चाय टू वेक अप। अब ये कैफीन इंड्यूस्ड बेवरेज इज चाय, बिकॉज चाय हैज कैफीन। व्हाई डू पीपल वांट टू हैव टी? क्योंकि कैफीन से थोड़ा एक्टिव फील होता है। कॉग्निटिव अलर्टनेस मतलब आपके जो चित्त है, आपका जो कॉग्निटिव, आपकी एबिलिटी को बोलते हैं, जो आपकी सोच पाने की एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू थिंक, सो कॉग्निटिव अलर्टनेस। अब कैफीन अगर अंदर जाएगा, चाय पी के यू फील लाइक नींद खुल गई, सो बेसिकली यही बोल रहे हैं, नींद खोलने के लिए मोस्ट लोग चाय पीते हैं। तो ये खाली एक फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने का तरीका है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को खाली मोस्ट पीपल, मतलब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादातर लोग, इतनी सी बात है, एंगेज इन हैबिचुअल मॉर्निंग कंजम्पशन, कि उनको आदत है ऑफ कैफीन इंड्यूस्ड बेवरेज, चाय, टू इनहांस कॉग्निटिव अलर्टनेस, वेकअप एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। complex sentence structures, they can be simplified. We have to see that we ignore unnecessary jargons. The passage defines key terms within the passage itself. So we will be able to find अगर हम अपना clarity रखें तो. Track multiple viewpoints to answer inference questions accurately. क्योंकि हमें जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कई सारे multiple viewpoints दिए हैं और आगे फर्दर पैसेज में कोई एक स्पेसिफिक व्यू पॉइंट क्या कहते हैं सपोर्ट किया गया है, बाकी को इवेंचुअली क्रिटिसाइज करके डिस्कार्ड कर दिया है, तो हमें जानना होगा कि जो सपोर्टेड व्यू पॉइंट है वही इन्फरेंस में काफी लाइकली है कि आंसर होगा। तो इसलिए हमें व्यू पॉइंट भी समझ पाना जरूरी है। You have to focus on reasoning and not memorization. Like I said, CLAT tests logical comprehension. प्यार के वो तीन शब्द, presence of mind, उस समय दिमाग चलना है। Now, I have created a list of some of the trap words कि खाली बात को लंबा करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी अक्सर मिल जाएंगे, या फिर थोड़े टेक्निकल पैराग्राफ्स में इस तरीके के वर्ड्स मिल जाएंगे। तो कई बार ये बच्चों को थोड़ा परेशान कर देते हैं, और ये इतने रिपीटेडली यूज्ड वर्ड्स हैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि इनका मतलब तो आप मतलब आज से रट लो तो काफी जिंदगी थोड़ी तो आसान हो जाएगी। तो अगर देर आर दिस आर द दिस इज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी और डाउट। These are used to make statements sound uncertain or debatable, कि पक्का पक्का तो नहीं पता है, जैसे कि हिंदी में वर्ड्स होते हैं अक्सर, ज्यादातर। तो इसका ये मतलब है, अक्सर का मतलब है कि जितने मतलब ज्यादातर टाइम हो रहा है, हमेशा नहीं हो रहा है। तो जब उनको कोई when there is a need for doubt, when it is not 100% sure, 90% sure है, 80% sure है, then these words come in use. Ostensibly या appearing to be true but not necessarily so, कि ऐसा लग तो रहा है बट ऐसा पक्का नहीं है। तो ostensibly, appearing to be true but not necessarily, so it's creating a doubt. For example, the reforms were ostensibly aimed at improving the economy, कि ऐसा लग रहा था कि वो दे आर एम्ड एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, दे वर सपोज्ड फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट ऐसा लग रहा था, दे वर सपोज टू डू इट, करना तो था, अब हुआ नहीं हुआ वो अभी छोड़ दिया है मामला। ठीक, अनदर टेक्स्ट अनदर सच वर्ड इज एलिजेडली। ओ ये तो आपने न्यूज़पेपर में अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है तो पक्का ही पक्का सुना होगा, ये तो मतलब सबसे सबसे कॉमन वर्ड है। क्लेम्ड टू बी ट्रू बट नॉट प्रूवन। तो अगर किसी
कई बार न्यूज वगैरह में होता है ना कि किसी को भी तुरंत बोल दिया कि हाँ ऐसा लगता है यही गुनहगार है, बट अभी इतने एविडेंस नहीं इकट्ठे कर पाए हैं कि इसको पक्का तौर पे गुनहगार बोल दें, तो इसलिए अलेजिडली बोलते हैं, ही एलिजिडली कमिटेड फ्रॉड। अक्सर ये क्राइम और इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है कि ही एलिजिडली कमिटेड फ्रॉड, यानी कि ही इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, उस पे इल्जाम है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। सो एलिजिडली इज द वेरी कॉमन वर्ड, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, सो इट्स क्रिएटिंग अ डाउट, इट ही इज अक्यूज्ड एंड अक्यूज्ड वर्ड का मतलब भी जिसपे इल्जाम लगा है, अक्यूज करना, इल्जाम लगाना, अक्यूज्ड जो जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। सो ही हैज एलिजिडली कमिटेड फ्रॉड मतलब शायद इसी ने फ्रॉड किया है, बट का नहीं है, अभी हमारे पास इनफ सबूत नहीं है। थर्ड सच स्टेटमेंट वर्ड वुड बी परपोर्टेडली। परपोर्टेडली मतलब सेड टू बी ट्रू बट नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस। देख रहे हैं आप कि मतलब ये 100% पे बस मामला नहीं पहुंच पा रहा है, ऑलमोस्ट देयर सा लग रहा है। तो क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत काम किया है बट अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट मैं ये बात कह भी देना चाहती हूँ कि मुझे तो लग रहा है आपने ही किया है, तो मैं बोलूंगी एलिजिडली आपने ही किया है या परपोर्टेडली आपने किया है, ताकि मैं कल को कुछ मान लीजिए प्रूव हो गया कि नहीं आपने नहीं किया था, तो मेरे पास वो सेविंग ग्रेस रहे। तो एज अ लॉयर तो भाई ये वर्ड्स आपके मतलब टिप्स पे होंगे। तो purportedly said to be true but no strong evidence. For example, the company purportedly violated labor laws. The company is said to have violated labor laws. यानी अभी पक्का पक्का नहीं पता है, काफी हद तक ऐसा लग रहा है, बट अभी पूरे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ हम इसको पूरी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो purportedly, allegedly, ostensibly, ये वर्ड्स नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब अनदर टाइप, ओवरली वर्डी या राउंड अबाउट फ्रेजेस, की कैसे घुमावदार भाषा या ऐसे बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करने के लिए, खाली एक शब्द की बात के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज करके उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने के कुछ फ्रेजेस। तो ये भी आप थोड़ा दिमाग में रखिए, जब ये दिखे तो आप समझ जाइए कि ये राउंड अबाउट फ्रेजेस का ज्यादा कुछ इतना है नहीं इम्पैक्ट पूरे स्टेटमेंट पे। they just add unnecessary complexity without adding any real meaning. So it is often the case that, ऑफन अक्सर, ऐसा अक्सर होता है, बोले या खाली अक्सर बोले, अक्सर खत्म। तो इट इज ऑफन द केस दैट, सिर्फ ऑफन समझो इसको, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मैनी या सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल आर सेइंग दैट, मेनी पीपल आर सेइंग दैट, सिंपल सी बात है, तो खाली लंबा कर दिया ना उसने। एग्जिबिट्स अ टेंडेंसी टू मतलब कि ये एक प्रवृत्ति दिखाता है, जैसे students exhibit a tendency to shy away from difficult passages, कि एक tends to एक प्रवृत्ति दिखाते हैं कि उस जो डिफिकल्ट पैसेजेस है उससे भागने की प्रवृत्ति, या या फिर कोई जंक फूड खाने की प्रवृत्ति, दे एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू, दे टेंड टू। तो बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल कंसर्न दैट, इट इज कंसर्निंग दैट बेसिकली, कि इसके मामले में, इस मामले से जुड़ा हुआ। ठीक है, इन द इवेंट दैट, इफ अगर ऐसा हो जाए तो, इन द इवेंट दैट दिस हैपेंस, इफ दिस हैपेंस, तो इट्स जस्ट इफ। ओके, नाउ words that make simple ideas sound complex, take 3. So these are the words that make passages unnecessarily academic और legalistic. academic again, academic तो मतलब है कि वो जो सबसे पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा शोध करने वाले लोग अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कोई भी वर्ड, कोई भी मुद्दे के इतने डायमेंशंस निकाल देते हैं ना, कि वो बहुत लेयर 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 इतनी लेयर हो जाती है कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अक्सर बोलते हैं कि कोई चीज अगर अकेडमिक है तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कई बार ये थोड़ा सा नेगेटिव टोन भी कैरी कर सकता है, बट नॉट हमेशा। परपोर्टेडली लाइक आई सेड, हो सकता है बट हमेशा नहीं। ठीक है, try to use the words that you learn also. So juxtaposition, placing things side by side for comparison. Simple हो गया comparison, कि जैसे कि एक something was placed in juxtaposition, a situation was placed in juxtaposition to this situation, तो ये situation A situation B का comparison, तो juxtaposition. डिसप्रपोर्शनेट, नॉट बैलेंस्ड और इक्वल, अनइक्वल बेसिकली, कि डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी, कि किसी के पास बहुत मतलब आउट ऑफ प्रपोर्शन प्रॉपर्टी है, तो अनइक्वल या फिर प्रपोर्शन से बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस्ड नहीं है। कि एक बैलेंस्ड होती है कि भाई आप इतना पैसा कमाते हैं तो आप उसके बेसिस पे इतनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बट अगर आपके पास उसके 6 गुना 10 गुना प्रॉपर्टी, तो वो डिसप्रपोर्शनेट है, वो बैलेंस नहीं है, कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं है, सो इट्स डिसप्रपोर्शनेट।
थोड़ा इम्बैलेंस्ड है, अनइक्वल या इम्बैलेंस्ड, आई थिंक इम्बैलेंस्ड वुड बी अ बेटर वर्ड देन अनइक्वल हियर, तो आप उसको देख लेना। देन एक्सपीडिशियस, डन क्विकली, सिंपली, फास्ट। तो एक्सपीडिशियस भी न्यूज़पेपर वगैरह में काफी यूज वर्ड है। यूटिलाइज इज यूज, मिटिगेट टू रिड्यूस, जैसे भी हमने अपने पिछले पैराग्राफ में भी देखा था मिटिगेट। तो ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में मिटिगेट वर्ड तो बहुत यूज होता है। तो मिटिगेट वर्ड तो आप भूले मत, किसी चीज के, किसी हार्मफुल चीज के इम्पैक्ट को कम करना, ठीक है, दैट्स मिटिगेशन। जैसे मिटिगेटिंग ये क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स और इस तरीके की चीजें, तो मिटिगेट वर्ड क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली यूज होता ही होता है। एग्जैसरबेट, वी हैव डन दिस आल्सो, टू मेक थिंग्स वर्स, कि उसको और बढ़ा देना, मतलब बढ़ाना वर्स के सेंस में, टू वर्सन समथिंग। ओके, नाउ misleading cause and effect phrases. These phrases suggest causation even when it might just be correlation. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट हो जाएगा शायद। को रिलेटेड विद, माइट बी रिलेटेड बट नॉट नेसेसरली अ कॉज, कि कोई चीज इससे को रिलेटेड है, बट ऐसा मतलब इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड हो सकती है, बट ऐसा पक्का नहीं है कि यही इसी ने किया है। कि आपकी अर्ली प्रेपरेशन कुड बी को रिलेटेड विद योर पॉजिटिव रिजल्ट, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी वजह से, क्या पता आपने बीच में इतनी ज्यादा मेहनत की इस वजह से आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया, अगर आपने नहीं किया होता तो नहीं आता। इस तरीके से को रिलेटेड बट नॉट नेसेसरली अ कॉज। कोइंसाइड्स विद, हैपेंस एट द सेम टाइम बट नॉट नेसेसरली लिंक्ड। तो कोई दो चीजें, कोई दो इवेंट अगर एक टाइम पे हो रहे हैं, बट कि से कुंभ से माय बर्थडे कोइंसाइड्स विद इंडिपेंडेंस डे, यानी कि मेरा बर्थडे और इंडिपेंडेंस डे, मेरा बर्थडे 15 अगस्त को पड़ता है, दोनों सेम डे पे पड़ रहे हैं, हैपेंस एट द सेम टाइम, बट मेरा बर्थडे और इंडिपेंडेंस डे में कोई रिलेशन नहीं है। एट्रीब्यूटेबल टू, दैट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय बट नॉट नेसेसरली प्रूवन। तो कई बार बोलते हैं कि कोई चीज मान लीजिए, से ट्रम्प पे गोली चली, द अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट एट शॉट attempt at shooting Mr. Trump can be attributed to politics। तो भाई पॉलिटिक्स भी हो सकता है, किसी की अपनी पर्सनल हेटरेड भी हो सकती है, बट इलेक्शन का टाइम था तो ऐसा तो लगता है पॉलिटिक्स ही होगा, बट क्योंकि हमारे पास 100% कोई प्रूफ नहीं है, तो इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इट कैन बी सेड टू बी कॉज्ड बाय बट नॉट नेसेसरली प्रूवन। कोई आके बोल दे कि नहीं नहीं पॉलिटिक्स नहीं था, ये तो उनका कोई पर्सनल दुश्मनी था, तो एट्रीब्यूटेबल टू। नाउ रिजल्ट्स इन, ओनली यूज इफ डायरेक्टली प्रूवन, अदरवाइज लिंक्ड टू बोलिए। तो अगर 100% श्योर है कि भाई रेगुलर प्रेपरेशन रिजल्ट्स इन पॉजिटिव रिजल्ट, पक्का पक्का है। रेगुलर अर्ली प्रेपरेशन इज लिंक्ड टू पॉजिटिव रिजल्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, बट लिंक है कि भाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये चीज है। लीड्स टू, यानी कि मे इम्प्लाई कॉजेशन व्हेन जस्ट एन एसोसिएशन, यानी कि समथिंग लीड्स टू अदर थिंग। से फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, ईटिंग जंक फूड लीड्स टू डायबिटीज, या ईटिंग जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी। और भी रीजंस हो सकते हैं, हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं डायबिटीज के, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, बट ये एक कॉजेशन, मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है, तो एक कॉज तो इम्प्लाई कर रहा है, बट लाइक एक एसोसिएशन ये 100% तरीके से नहीं है ये, ठीक है। तो ये कुछ इन वर्ड्स को आप 2-3 बार पढ़ के 2-3 बार यूज करके फेमिलियराइज हो जाइए। सो जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं एंड यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, तो एक दिमाग में फेमिलियराइजेशन होगा, तो ये आपको अटकने नहीं देंगे, ठीक है। यस, तो दीज आर अगेन सम मोर ओवरली एकेडमिक वर्ड, ये न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत यूज होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ले आई हूँ, बिकॉज यू आर सपोज टू बी रीडिंग एडिटोरियल्स एंड इफ यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, तो you will have some clarity। So dichotomy, a clear division between two things, simpler division basically। There exists a dichotomy कि दो, इसके दो aspects exist करते हैं, इसके दो धड़े, दो parts exist करते हैं, तो it's just division, a clear division between two things। पैराडाइम शिफ्ट तो भाई राइटर्स का फेवरेट होता है। अ मेजर चेंज इन थिंकिंग, सिंपली बिग चेंज इन आइडियाज, कि से ट्रम्प्स इलेक्शन
इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन जियो पॉलिटिक्स, कि एक तो बहुत ही बड़ा चेंज आ गया कि अब तो वो यूक्रेन में वॉर रुकवा देगा, इसराइल में वॉर रुकवा देगा, मतलब पैराडाइम शिफ्ट, इट्स अ बिग बिग चेंज। तो ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे बड़े चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है। एपिस्टेमोलॉजिकल, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है क्लैट में, दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड हाउ वी अंडरस्टैंड इट। फिलोसॉफिकल पैसेज में काफी चांस है ये वर्ड यूज हो, कि नॉलेज, कि किसी चीज का एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच, कि नॉलेज का अप्रोच क्या है, मतलब उसका किस तरीके से उसको समझा जा सकता है, तो ये इसका एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है। आइडियोलॉजिकल स्टैंस, अगेन बिलीफ और ओपिनियन, कि ट्रम्प का आइडियोलॉजिकल स्टैंस क्या है, नेशनलिस्टिक, भाई वो बहुत ज्यादा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ये सब करते रहते हैं, तो नेशन की तरफ ओरिएंटेड, नेशनलिस्टिक, नेशनलिस्ट है, तो उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंस है वो, तो एक बिलीफ और ओपिनियन क्या है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टैंस। नाउ false complexity, ठीक है। so words that seem that make ideas seem deeper than they really are, कि इतनी बड़ी बात हो नहीं रही है जितना इसको देख के लगता है, it's just that। तो profound implications, again ये सब चीजें मैं इसलिए लाई हूँ कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें and if you come across these things because these are quite repeated terms, तो it's better कि at the outset like starting में अगर आपको पता होंगे तो it will make your journey slightly easier। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस यानी कि बिग इफेक्ट्स, पैराडाइम शिफ्ट टाइप की चीज कि विल हैव सम प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, ट्रम्प इलेक्शन विल हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। requisite adjustments, necessary changes, कि now that Mr. Modi has taken power, there will be some requisite adjustments done to economy, politics, whatever। ठीक है, जो जरूरत के चेंजेस हैं, नेसेसरी चेंजेस। intricately woven arguments, detailed argument basically, आप एज अ लॉयर यू विल बी डूइंग इंट्रिकेटली वोवन आर्ग्यूमेंट्स, की मतलब बहुत ही वीव करना, वोवन इज वीव करना, तो बहुत ही अच्छे से वीव किए हुए, बहुत ही सुंदर से बनाए हुए आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, बहुत ही ढंग के बनाए हुए आर्ग्यूमेंट्स, सो इंट्रिकेटली वोवन आर्ग्यूमेंट्स। कॉग्निजेंट ऑफ द रेमिफिकेशंस, अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई अगर ये बोलना है कि से रमेश committed the murder while and he was cognizant of the ramifications, उसको पता था कि भाई मर्डर कर दिया है और उसका क्या उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, तो ही वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द ramifications, खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या उसको पता था। इट्स जस्ट दैट। मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉग्निटिव प्राउएस, मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही भाई आई थिंक जेंजी के बीच में तो इट्स अ वेरी पॉपुलर दी वर्ड, मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉग्निटिव प्राउएस मतलब कि बस अकलमंदी शो करना, इंटेलिजेंस शो करना। कॉग्निटिव का वर्ड जब भी आएगा, कॉग्निटिव अगेन वेरी यूजफुल इन साइंस रिलेटेड पैसेजेस आल्सो, फिलोसफी पैसेजेस आल्सो। थिंकिंग, कॉग्निटिव प्राउएस मतलब सोच पाने की एबिलिटी, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रॉवेस, उसने अपनी सोच पाने की एबिलिटी का एक डिमॉन्स्ट्रेट किया एग्जाम्पल, तो शोइंग इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस शो करी। इट्स जस्ट दैट। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लिकेट करने के तरीके हैं ये, खाली जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, तो 3-4 बार, 2-3-4 बार, तो व्हेन यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स इन न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन्स दैट यू रीड, तो ये उतना डराएंगी नहीं ये चीजें, बिकॉज आपको एक फेमिलियरिटी होगी, फिर आप 2-3 बार भी इसको और वापस से देख लेंगे, तो थिंग्स विल बी easier फॉर यू। नाउ सम होमवर्क, क्योंकि खाली यहाँ 1 घंटे आधे घंटे पढ़ लेने से तो चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू थिंग्स, ताकि चीजें थोड़ा आसान हो, किसी पाथ पे चलना आसान हो, चलना तो आपको ही है, पाथ जो लंबा है। So you should solve 5 comprehension question from past CLAT papers. Previous year paper questions are very important. We will solve them, but it's better कि आप थोड़ा सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्लैट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप कुछ भी चीज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, अच्छा हाँ ऐसा पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछ सकता, ये यूजलेस है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी से 4-5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। इफ 5 इज टू मच, लाइक सबका अलग अलग लेवल होता है, सब किसी का इंग्लिश फोर्टे है, किसी का रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग फोर्टे है, तो आपका कम है एंड इफ यू आर स्लो एट दिस पॉइंट जस्ट डोंट वरी एट ऑल, 2 कर लो, 3 कर लो, you don't have to like meet the target of 5 only. If you're already good at it, this is your strength, go to 5, but do not worry about the टाइमिंग एट दिस पॉइंट। जो चीजें हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको समझ के सॉल्व करने की अभी कोशिश करिए।
आइडेंटिफाई 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड सिंप्लीफाई देम। जो कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है, कुछ डरावना सा भूत जैसा सेंटेंस है, ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू सी कि उसके बीच में, उसके अंदर छुपी हुई मीनिंग क्या है, डिस्गाइज्ड मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। रीड एन एडिटोरियल एंड नोट व्यू पॉइंट शिफ्ट्स। एडिटोरियल्स में ये जरूर होता है कि कुछ व्यू पॉइंट ऑथर अपना देता है, और क्योंकि वो एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड आर्टिकल होता है, तो वो दूसरे व्यू पॉइंट्स भी देता है, फिर उनको खारिज करता है या उनको सपोर्ट करता है। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए अलग अलग क्या व्यू पॉइंट्स दिए हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करिए। एंड रिव्यू टुडे स्ट्रैटेजीज एंड अप्लाई देम इन प्रैक्टिस। आज जो हमने सीखा उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।